Hello students, today we are going to study the chapter number 2 in the economic section of social science for class 9th, people as a resource. In this chapter we have studied that how the human capital formate and how the people's works as a resource in the form of human capital, and what are the different types of roles of health education in the formation of human capital, and what is the unemployment, or what is the difference between the different types of employments. Are all these things are studied in this perspective of this video. Okay, so let me discuss and start our discussion today. Here we see that how we considered as the people as a resource. So we see that people as a resource is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability. Population becomes human capital when there is investment made in the form of education, training, and medical care. Human capital is the stock of skill and productive knowledge embodied in them. People as a resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and abilities. बच्चों इसका ये मतलब हुआ कि जो पीपल है वो रिसोर्स कैसे कह सकते हैं हम लोग। देखो, पीपल हमारे लिए क्या है, एक एसेट है, एक हमारी प्रॉपर्टी है, और वो ऐसी प्रॉपर्टी है जो बर्डन नहीं है हमारे ऊपर। यानी कि हमारे देश के ऊपर जो ह्यूमन फॉर्मेशन या ह्यूमन बीइंग है, वो पॉपुलेशन एक बर्डन नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए एक प्रॉपर्टी का काम करता है, एक एसेट का काम करता है। वो कैसे? क्योंकि देखो, डिफरेंट टाइप के पीपल्स होते हैं जिनको नॉलेज दे करके, जिनको स्किल करके स्किल्ड वर्कर बनाया जाता है, जिनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है और जिनको अच्छी एजुकेशन दी जाती है, और वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आता है जो समाज की सेवा करता है। इसका मतलब ये हुआ कि when the human being taken or obtain the knowledge and the knowledge of their technology skills education by the different types of training, then that people becomes as a asset or as a property of this society, and that people is always importance and always getting importance from the society by getting different types of training skills and knowledge, and then it becomes a fully educated people or fully skilled people who becomes a important asset or property for the society in the form of service, or in the form of service in the different sectors, like becomes doctor, engineer, lawyer. Even the farmers are also skilled persons because they getting the knowledge of new different technologies in the formation of different types of productions, producting of crops, use of different types of manures, biofertilizers, and evenly in the new scenario there is the scenario of organic farming is also comes here. Okay, so we see that people as a resource, when they gain the different types of education skills and knowledge, and they become a skilled human capital, okay, through different types of education, training, and medical care. अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे बच्चों आगे कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी लोग अगर वो रिसोर्स तभी बनेंगे जब उन्हें अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छी हेल्थ मिलेगी, अच्छी फूड फैसिलिटी मिलेगी, और जिससे कि वो अपनी हेल्थ को भी गेन करेंगे, अच्छी एजुकेशन गेन करेंगे, अच्छी स्किल्स वगैरह अपने अंदर डेवलप करेंगे, अच्छी टेक्नोलॉजीज़ को सीखेंगे, जिससे वो अपने आप को एक कुशल श्रमिक या कुशल कारीगर बना लेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा कि वो एक पूरी सोसाइटी के लिए एक प्रॉपर्टी के रूप में, एक एसेट के रूप में उभरेंगे। और इसीलिए कहते हैं ह्यूमन कैपिटल, यानी ह्यूमन कैपिटल का मतलब है जिससे कि हमारे देश का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन बढ़ेगा, यानी कि हमारे देश की जीडीपी, यानी कि हमारे देश की ग्रोथ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो हमारे देश की जो राष्ट्रीय आय है वो भी बढ़ेगी। क्योंकि अगर हर एक व्यक्ति के पास काम होगा, हर एक व्यक्ति जो है वो अपनी नॉलेज के थ्रू पैसे को अर्न करेगा, तो वो पैसे कहाँ जाएगा? वो पैसा मार्केट में सर्कुलेशन के रूप में आ जाएगा, सर्कुलेट होगा मनी, तो हर व्यक्ति जो है वो काम पाएगा, पैसे अर्न कर सकेगा, और उसका लिविंग स्टैंडर्ड सुधरेगा। और जब उसका लिविंग स्टैंडर्ड सुधरेगा बच्चों, तभी जा करके एक ह्यूमन बीइंग सोफिस्टिकेटेड लाइफ या एक बहुत नॉर्मल स्मूथ लाइफ जिएगा, और जब वो स्मूथ नॉर्मल लाइफ जिएगा तभी उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी बढ़ेगा, और इस वजह से हमारे देश का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा,
और जब डेवलपमेंट अच्छा होता है तो हमारे देश में और अर्निंग आएगी, फिर फॉरेन करेंसीज भी हमारे देश में आएंगी, लोग बाहर से भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इस वजह से हमारे पूरे देश की जो अंदर का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, यानी कि सकल घरेलू आय, वो तो बढ़ ही रही है, और इसके साथ साथ हमारी नेशनल इनकम भी रेज कर रही है, तो उससे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन भी बढ़ता है। तो इस तरह से हमने समझा कि हर एक व्यक्ति को एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ ये सब मिले तो हर एक व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छी तरह ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के रूप में अपनी रोल को प्ले कर सकता है। अब हम लोग बच्चों आगे बात करेंगे कि ये जो मटेरियल है, प्लांट है, मशीनरी है, इन सब का यूज़ करके ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को एक हायर पोजीशन पे पहुंचाया जा सकता है। ठीक है। अब जैसे टेलर्स हैं, जैसे टेलर को देख लें या कोई कंपनी के एम्प्लॉयर्स को देख लें, उनको देखो नई नई टेक्नोलॉजी। अब जैसे हम ही लोग को देख लो बच्चों, हम लोग पहले क्या करते थे कि पहले आपको ऑफलाइन पढ़ाते थे, बोर्ड्स वगैरह पे पढ़ाते थे। ठीक है। तो हमें सिर्फ इतना ही ज्ञान था कि हम लोग केवल आपको फ्रंट से ही पढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी देखिए ऑनलाइन टीचिंग आ गई। ऑनलाइन टीचिंग से क्या फैसिलिटी मिली, एक तो हम अपने घर में रह के काम भी कर रहे हैं, और दूसरा है आपको प्रॉपर लेक्चर भी दे पा रहे हैं। और हमारे पास अब तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये आ गया कि हमारे कानों में आपका शोर नहीं पहुंचता। शोर ना मचने से क्या होता है कि टीचर का कंसंट्रेशन बढ़िया फोकस होता है लेसन के ऊपर, और उससे अच्छी पढ़ाई हो रही है। ठीक है। ये तो हो गई ऑनलाइन टीचिंग की बात, जिससे क्या होगा, अब ऑनलाइन टीचिंग से हमें बहुत सारी चीज़ें जो पहले नहीं आती थी वो भी हमने अब सीख ली हैं, और सीखने से क्या हुआ, हमारी स्किल बढ़ी है, हमारी कुशलता बढ़ी है। तो अब एक स्किल टीचर तैयार हो गया, जिससे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में और आगे जाकर के हमारे सोसाइटी के डेवलपमेंट में हम और ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, अपने ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे सकते हैं। इससे हमारी नेशनल इनकम की ग्रोथ होगी, हमारा नेशन और डेवलप होगा। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों कि देखिए, आप मैंने तो टीचर की बात करी, अब ऐसे ही बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और लॉयर्स हैं, उनको समय समय पर कई सारी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। फार्मर्स को भी कई टाइम पर देखिए ट्रेनिंग दी जाती है, अलग अलग टाइप के सीड्स बो, अलग टाइप से खेती करो। तो इससे क्या होगा, उनकी भी स्किल बढ़ती है, उनकी स्किल बढ़ेगी तो अच्छा फूड क्रॉप्स प्रोडक्शन होगा, अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन होगा तो सबकी हेल्थ बढ़िया रहेगी, सबको अच्छी मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो उससे बढ़िया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। ओके। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों कि ये क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में दो टाइप की एक्टिविटीज़ शामिल हैं। कौन कौन सी, एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ इन विच ऑल टाइप्स ऑफ सेक्टर्स आर इन्वॉल्व, लाइक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, एंड which are directly related to the market activities. In those activities, the production of goods and services takes place, and by these economic activities, we add the value to the national income. It means these include all types of production of goods or services, including government services or private services also. समझ में आया बच्चों कि मैंने ये कहा कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज होती है जो पैसे से मेनली कंसर्न रखती हैं, यानी कि जैसे प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और टर्शरी सेक्टर है। ये क्या है, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं तीन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में क्या होता है कि जैसे कोई नेचुरल रिसोर्स है, उससे हम उसको एक्सप्लॉइट करके उससे कोई क्रूड प्रोडक्ट निकालते हैं, कोई रॉ मटेरियल निकालते हैं, है ना, और उससे जो है अर्निंग करते हैं। फिर सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है कि उस रॉ मटेरियल को हम लोग प्रोसेस करते हैं, डिफरेंट टाइप की मशीनरी में डालते हैं, और फिर उसे रेडी टू यूज़ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, गुड्स बनाते हैं। तो ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है। अब टर्शरी सेक्टर में क्या आएगा, जैसे जितनी भी सर्विसेज और गुड्स जो रेडी टू यूज़ होते हैं, या सर्विसेज जैसे डॉक्टर्स की, लॉयर्स की, टीचर्स की, एजुकेटर्स की, और डिफरेंट टाइप के ट्यूटर्स होते हैं, या डिफरेंट टाइप के जो है आपके यहाँ लॉयर्स वगैरह भी हैं जो सब सर्विसेज दे रहे हैं। बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन है, और टेली कम्युनिकेशन, मतलब हर टाइप की आप ये समझ लीजिए जितनी भी सर्विसेज आपको मिल रही हैं वो सारी, तो जितने भी गुड्स हैं रेडी टू यूज़ हैं और जितनी भी सर्विसेज हैं ये सारी टर्शरी सेक्टर में आती हैं। ठीक है। अब ये जो तीनों सेक्टर मैंने बताया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इनके थ्रू जो भी हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ती है, जो भी हमारे देश के लिए कह लीजिए पैसे की अर्निंग हो रही है, और उससे हमारे सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी हो रहा है, उससे हमारे देश की पहले स्टेट की आय बढ़ेगी, स्टेट इनकम, फिर नेशनल इनकम बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय, और राष्ट्रीय आय में यानी कि नेशनल इनकम में वो सारी की सारी जो अर्निंग है वो ऐड कर दी जाती है। तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और यही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो डायरेक्टली मार्केट एक्टिविटीज से रिलेटेड होती हैं, क्योंकि मार्केट में सारा प्रोडक्ट आएगा, मार्केट में वहाँ पे सेलिंग और परचेजिंग होती है उसकी, और मनी के थ्रू होता है सब, तो मनी सर्कुलेट होता है। मनी जब सर्कुलेट होगा तो सभी की
का डेवलपमेंट होगा। अब दूसरा एक टाइप का और सेक्टर है या दूसरे टाइप की एक और एक्टिविटी जिसको बोलते हैं नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज़। नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि प्रोडक्शन फॉर द सेल्फ कंजम्पशन। इसमें क्या होता है कि जो लोग प्रोडक्शन करते हैं लेकिन वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए, जैसे गांव में क्या होता है कि जैसे खेतियों में हम लोग अनाज उगाते हैं तो उसमें से कुछ अपने लिए बचा के रख लेते हैं, कुछ बाकी मार्केट में बेचते हैं। तो मार्केट में जो बेचा वो तो मार्केट एक्टिविटीज़ में आ गया, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में शामिल हो गया। लेकिन जो नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है जो कि हमने अपने लिए प्रोडक्शन करके रखी, एक्चुअली वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ही आएगी। लेकिन क्या है कि उससे हमारी अपनी इकोनॉमी बढ़ी, हमारे पास अपने लिए हमें नई मार्केट से फूड नहीं खरीदना पड़ेगा, तो वो हमारी इकोनॉमी बचेगी तो उससे सबसे बढ़ेगी। लेकिन वो मेनली नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में आता है। अब दूसरी प्रकार की एक्टिविटीज़ हो गई बेटा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब क्या हुआ? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब ये हुआ द एक्टिविटीज़ विच डूइंग बाय द पर्सन्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन्स for not earning the money. By not earning the money, they only doing that work at their domestic level. Okay, खाली घर में जैसे कोई लोग क्या करते हैं कि काम कर लेते हैं, जैसे कोई घर में खेती खेत में अपने जैसे किचन गार्डन में सब्जी उगा लेता है, ठीक है। या फिर घर में जैसे हमारी मम्मियां हैं काम करती हैं घर में, जैसे कि क्या कहते हैं, बहुत सारी देखा होगा आप लोग की मदर्स वगैरह भी काम करती हैं, बहनें काम करती हैं, और बहुत सारे जो आपके यहाँ बूढ़े बुजुर्ग भी लोग होते हैं वो भी बहुत सारे काम घर के करते हैं। इवनली आप भी घर के काम करते हैं, लेकिन ऐसे काम होते हैं जो घर के लिए एसेंशियल हैं, समाज के लिए एसेंशियल, लेकिन उससे कोई पैसे की अर्निंग नहीं हो रही है विच दैट वर्क विच नॉट कंट्रीब्यूट इन द अर्निंग ऑफ देयर लाइवलीहुड। मतलब आपकी लाइवलीहुड या आपके जीविकोपार्जन में आपके घर के लिए या किसी के लिए भी उसमें अर्निंग नहीं हो रही है, कोई पैसा नहीं कमा रहे आप उससे, खाली आप काम कर रहे हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज़ होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में देखिए, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है शीला का। तो शीला क्या कर रही है? शीला कुक्स फूड, cleans utensils, washes clothes, cleans the house and looks after her children। ये खाली अपने घर की देखभाल कर रही है, घर का साफ सफाई करती है, तो ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। ओके, अब आता है बच्चों, क्या इससे क्या फ़र्क पड़ा? इससे ये फ़र्क पड़ा कि जो घर के घरेलू काम होते हैं उनको नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता। इससे क्या होता है बच्चों की जो वीमेंस हैं वो सारी की सारी काम तो कर रही हैं घरों में, लेकिन वो नॉन पेड वर्कर हैं। तो नॉन पेड वर्कर हैं, वो खाली अपने घर की देखभाल कर रही हैं सिंपली, तो उनकी इतनी वैल्यू नहीं है चूंकि नेशनल इनकम में, इसलिए उनको ज़्यादा क्या कहते हैं कि बहुत वैल्यू नहीं दी जाती समाज में, उनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस समाज में नहीं दी जाती, इसलिए क्योंकि वो अर्निंग में अपना जो है डायरेक्ट रोल नहीं प्ले करती हैं। और ऐसी जो वीमेंस होती हैं मेनली देखा गया है कि उनकी एजुकेशन बहुत कम होती है, उनकी लो स्किल है, उनको कुशलता नहीं है उनके कामों में ज़्यादातर, और इसीलिए उनको जो है मेन के कंपैरिजन में विमेंस को जो है लो पेड वर्कर माना जाता है। उनकी सैलरी भी कम होती है बहुत जगह अगर वो काम भी कर रही होती हैं, क्योंकि उनको इतनी, हमारा जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दे पाता है इस पर्सपेक्टिव में, ठीक है। तो और उनकी ये भी देखा गया है बहुत सारी वीमेंस का वर्क, जैसे कि उनके पास जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि वो कहीं बाहर काम करती हैं तो वो जॉब उनको कई वजह से छोड़नी भी पड़ जाती है, जैसे उनके बच्चों की देखभाल नहीं हो पा रही है, घर की देखभाल तो उनको छोड़नी भी पड़ जाती है। दूसरी बात है कि एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इस सेक्टर में इरेगुलर एंड लो इनकम। विमेंस के सेक्टर में अक्सर ये देखा गया है, और खासकर प्राइवेट कंपनीज में, कि उनकी इनकम भी लो होती है और वो इरेगुलर जॉब है, यानी कि उनको बेसिक फैसिलिटीज़ है, मैटरनिटी लीव नहीं मिलती, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ वगैरह के लिए लीव नहीं मिलती, सिक्योरिटी सिस्टम के लिए भी लीव नहीं मिलती है, या उनको सोशल सिक्योरिटी सिस्टम भी नहीं मिलता है। तो चूंकि ऐसा है कि वीमेंस जो हाई एजुकेशन गेन करती है, स्किल फॉर्मेशन है, वो तो सारी सारी पेड हैं, उनको अच्छी सैलरी मिल रही है आदमियों के बराबर, लेकिन जो बेचारी बहुत मीगर एजुकेशन वाली हैं, जिनको लो स्किल फॉर्मेशन है, उनको ये सब सुविधाएं नहीं मिल पाती। ऐसे ये क्या है? ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब है जहाँ पर गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन सारे लागू होते हैं और जिनमें अर्निंग जो है कंटिन्यूसली हो रही है, वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब जैसे प्राइवेट जॉब्स हैं, उनमें कब नौकरी चली जाए कब ना जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, वो जॉब सिक्योरिटी नहीं है बच्चों, लो इनकम है, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अब आता है बच्चों की एजुकेशन का। इसका मतलब हमने देखा कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड किस पे करती है? लिटरेसी रेट, साक्षरता दर पर। जितना ज़्यादा क्या कहते हैं कोई व्यक्ति एजुकेटेड होगा, उतना ही ज़्यादा उसकी स्किल फॉर्मेशन बढ़ता है, उसकी स्किल एबिलिटी बढ़ जाती है।
और जितनी ज़्यादा उसने पढ़ाई लिखाई की होती है, जितना ज़्यादा वो स्किल्ड हो जाता है, टेक्नोलॉजी का ज्ञान होता है उसको, वो उतना ही ज़्यादा समझ लीजिए समाज में, सोसाइटी में एक एसेट की तरह उभरता है। फिर दूसरी बात है हेल्थ ऑफ अ पर्सन। उस समाज में रहने वाले जो ह्यूमन बीइंग है, उन पर्सनल्स की हेल्थ कैसी है। अगर हेल्थ अच्छी होगी, उनकी लिटरेसी रेट अच्छा होगा, साक्षरता दर, तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवन में जीने की जो दर है वो बढ़ जाएगी। और स्किल फॉर्मेशन करने से ये जो है कंट्री के लिए एक एसेट बन जाएंगे। तो यानी कि पॉपुलेशन की क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोर पीपल हैव टू एजुकेट एंड गेन द स्किल्ड नॉलेज। ओके। और दे ऑल्सो इंजॉयज द मोस्ट ऑफ हेल्थ पब्लिक फैसिलिटीज़। यानी कि गवर्नमेंट को हमारी चाहिए कि उनकी एजुकेशन, उनकी स्किल फॉर्मेशन, उनको क्या कहते हैं कि हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी से अच्छी दे और फ्री ऑफ कॉस्ट रेट पे दे, या फिर उनको लो कॉस्ट पे दे, ताकि उनकी मैक्सिमम क्या कहते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ सके और उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करे। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों बाद कि नवोदय विद्यालय जैसे इस क्षेत्र में खुले हुए हैं। नवोदय विद्यालय हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसीलिए खोले गए ताकि एजुकेशन मिले और स्किल्ड पर्सन तैयार हो सके। ठीक है। तो लगभग इसमें सरकार ने देखिए फर्स्ट प्लान के तहत लगभग देखिए 3,766.90 करोड़ रुपया 11th प्लान के तहत इन्वेस्ट किया था। और ये एक्सपेंडिचर जो इन्वेस्ट किया गया था, इससे जीडीपी की ग्रोथ कितनी हो गई, लगभग देखिए 0.64% बढ़ी। और 1951 से 52 में फिर ये घटी, लेकिन ये 0.64% से बढ़ते बढ़ते जो है 3.3% तक पहुंच गई थी 2013-14 में। ठीक है। इससे मतलब है कि ये ग्राफ धीरे धीरे देखिए रेस करता चला जा रहा है इकोनॉमिक सर्वे में कि मेल और फीमेल सबकी एजुकेशन से बहुत ज़्यादा फायदे मिल रहे हैं। ठीक है। अब आता है बच्चों इसके बाद कि ये जो बहुत सारे लोग एजुकेशन में देखा गया है कि अगर वो नहीं पढ़ते और उनकी जो है क्या कहते हैं पढ़ाई रुक जाती है, तो उससे क्या नुकसान होगा। उससे क्या होगा कि उनके यहाँ उनके जीवन में एक स्टैग्नेशन हो जाता है। स्टैग्नेशन का मतलब है एक रुकावट आ गई। रुकावट आ गई, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत गरीब घर के होते हैं, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट स्कूलों में गए, पढ़े, 1-2 कक्षा पढ़ी, उसके बाद में वो रुक गए। रुकने के बाद क्या होगा कि वो फिर से जो उनकी पढ़ाई पिछली थी वो तो वेस्ट हो गई, क्योंकि वो सारा भूल जाते हैं। आगे उनको स्किल फॉर्मेशन नहीं मिलता, आगे उनको और ज़्यादा बढ़ने का मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके पास एजुकेशन उतनी होती है, वो लिमिटेड होती है, और वो भी वो आके जाके भूल जाते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि उनके लाइफ में वेस्टेज और स्टैग्नेशन आ जाता है एजुकेशन के क्षेत्र में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने हमारी सोचा कि एक सर्व शिक्षा अभियान चलाया उसने। तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत उन्होंने कहा कि जितने भी चिल्ड्रंस होंगे अंडर द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स बाई 2010, द गवर्नमेंट शुड बी प्रोवाइड द एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। मतलब सर्व शिक्षा अभियान में ये कहा गया कि जितनी भी लोग हैं, जो बच्चे हैं, मेनली 6 से 14 साल के बच्चे, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। और वो भी सभी सरकारी स्कूलों में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, और एलिमेंट्री एजुकेशन जरूर दी जाएगी, जिससे कि वो हमारे देश में उनके जो लाइफ में स्टैग्नेशन और वेस्टेज हो रहा है एजुकेशन का, वो ना आए। इसके अलावा मिड डे मील योजना चलाई गई है। यूनिवर्सलाइजेशन भी किया गया एलिमेंट्री एजुकेशन का, लोकल गवर्नमेंट के थ्रू, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, नेशनल गवर्नमेंट के थ्रू, जिससे कि इस पॉलिसी से इंडिया की पॉपुलेशन में लिटरेसी रेट धीरे धीरे बढ़ गया और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब स्कूल भी भेजने लग गए बच्चों को। ठीक है। हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें तो हेल्थ फैसिलिटीज़ में देखिए जो हेल्थ पर्सनल्स होते हैं वो हेल्थ पोटेंशियल्स को बढ़ाते हैं लोगों की, जैसे कि बच्चों का वेट, और समय समय पर आपके स्कूलों में भी होता है देखिए, जैसे कि आपके हाइट और वेट नापा जाता है। ठीक है। आपका जो है बॉडी वेट चेक किया जाता है, डिफरेंट टाइप के देखिए, कभी क्या कहते हैं कि डीवर्मिंग कराई जाती है तो एल्बेंडाजोल वगैरह खिलाई जाती है, कभी कैल्शियम की गोलियां बांटी जाती हैं, आयरन की गोलियां बांटी जाती हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा गर्भवती महिलाओं को बहुत सारे देखिए टीके लगते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट लगते हैं। उनको कैल्शियम और आयरन टैबलेट्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। बच्चों के लिए फूड न्यूट्रिशन दिया जाता है, स्पेशली गर्ल्स के लिए देखिए आंगनवाड़ी में कितने सारा फूड्स का आपको फूड देने के लिए। अभी जैसे हाल ही में एक प्रोग्राम हुआ था कालसी क्षेत्र में हमारे, जिसमें कि लेडीज़ को सबको जो है वो पंजीरी वगैरह प्रोवाइड कराई गई थी। न्यूट्रिटिव एक आटा प्रोवाइड कराया गया था खाने के लिए, जिसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत थी। तो इससे क्या होता है, ये समय समय पर गवर्नमेंट नई नई स्कीम्स लाती है, जैसे कि सभी मेन वीमेन चिल्ड्रंस सबकी जो है हेल्थ स्टेटस बढ़े। और इस हेल्थ स्टेटस से बढ़ने से क्या होगा, सारे जब पीपल्स हेल्दी होंगे, सारे पीपल्स जब हेल्दी हो जाएंगे, तो वो हमारे सोसाइटी में एक अच्छी ग्रोथ कर सकेंगे। और जब अच्छी ग्रोथ करेंगे तो उनसे वर्किंग पोटेंशियल उनका बढ़ेगा।
और धीरे धीरे क्या होता है कि जो हेल्थ पर्सनल्स होते हैं, लोगों की एबिलिटी और पोटेंशियल और हेल्थ एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, जिससे कि उनका जो शरीर है वो ज़्यादा से ज़्यादा इलनेस से फाइट कर सके, उसके लिए समय समय पर आपको नए नए इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशन भी मिलते रहते हैं। अब आता है बच्चों इसके बाद कि इस चैप्टर में कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है, इट इज़ सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति कहीं पर काम करना चाहता तो है और वो काम ढूंढने के लिए भी जाता है, लेकिन काम उसको मिले चाहे ना मिले, अगर उसको उसके बदले में पैसे नहीं वो अर्न कर पा रहा, नहीं मिल पा रहे हैं, और वो जॉब नहीं या तो पा रहा है, तो उसका मतलब है वो अनएम्प्लॉयड पर्सन है। इसलिए लिखा है अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स। यानी कि जो व्यक्ति काम करना चाहता है और उसको काम नहीं मिल पा रहा है और इसकी वजह से उसकी अर्निंग नहीं हो पा रही, तो उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। दूसरी बात, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट कई टाइप का है, एक सीजनल है और एक डिसगाइज है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हुआ विच हैपन्स व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ अ ईयर। जैसे गांव में क्या होता है कि खेतों में लोग काम तो करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब सीजन आता है तभी काम उनका होता है। जैसे गेहूं का काम, सीजन आया तो गेहूं कटा, तब मजदूरों को काम मिल गया, उसके बाद जब सीजन खत्म तो वो बेचारे क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड होकर के घर पे बैठ जाते हैं, उनकी अर्निंग बंद हो जाती है। इसी तरीके से जब आम की खेती होती है, आम का सीजन आता है, तो आम के लिए जो है वर्कर ढूंढे जाते हैं। एपीकल्चर करते हैं तो एपीकल्चर में भी जब एपीज का हनी हो जाता है कलेक्ट, तो उनके लिए वर्कर ढूंढे जाते हैं और वो काम पा जाते हैं। लेकिन जब वो सीजन चला जाता है तो पर्टिकुलर टाइम के बाद, यानी कि 1-2 महीने के बाद, फिर से वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो ऐसा जो अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें सीजन पे काम होता है और सीजन के बाद वो पीपल जो है वो जॉब्स फाइंड नहीं कर पाते कुछ मंथ्स तक, तो उसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा प्रकार का है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट वेयर दे फाइंड द वर्क। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिखते हैं कि वो एम्प्लॉय हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो अनएम्प्लॉयमेंट को झेल रहे होते हैं। वो कैसे? जैसे कि दिस यूजली हैपन्स अमंग फैमिली मेम्बर्स। ये अक्सर कैसा होता है, ये फैमिली मेम्बर्स के बीच में होता है, जो सारे के सारे एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगे तो हैं। द वर्क रिक्वायर द सर्विस ऑफ 5 पीपल। मतलब काम के लिए केवल 5 लोगों की जरूरत है, लेकिन इंगेज पूरा परिवार होगा, 8 लोग होंगे अगर परिवार में, तो सारे के सारे उस काम में, एग्रीकल्चर वर्क में, खेतों में काम करने के लिए सब इंगेज रहेंगे। तो 3 पीपल तो 5, जरूरत 5 की थी और लग गए 8 लोग, तो 3 तो एक्स्ट्रा हो गए। दीज 3 पीपल ऑल्सो वर्क इन द सेम प्लॉट एज द अदर। अब वो दूसरे ही लोगों की तरह 3 पीपल काम तो कर रहे हैं, बट द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द 3 एक्स्ट्रा पीपल डज नॉट एड टू द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द 5 पीपल। लेकिन उन 5 लोगों के द्वारा जो काम किया जा रहा है, उनकी जो वैल्यू, उनसे जो अर्निंग हो रही है, या उनकी जो वैल्यू है काम की, उसमें उन 3 लोग जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उनकी वैल्यू ऐड नहीं हो पा रही है, यानी कि उनके वर्क को उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही, उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा। तब ये कहलाएगा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि ये एम्प्लॉयमेंट होता है लेकिन वो छुपे रूप में होता है। ठीक है। अब आता है जैसे अर्बन एरियाज़ में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये बहुत ही एक बड़ी फिनोमिना है और बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन के रेज हो रही है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे यूथ होते हैं जो मैट्रिक कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, डिग्रीज है उनके पास, लेकिन फिर भी जॉब नहीं पा पाते हैं। तो ये स्टडी देखिए, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो उनका स्तर बढ़ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि उनको अनएम्प्लॉयमेंट बहुत झेलना पड़ा है। उनको पास होने के बाद, डिग्रीज लेने के बाद भी जो है अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है। और इस तरीके से क्या हुआ, हमारे पास सरप्लस मैन पावर है, हद से ज़्यादा, आवश्यकता से अधिक जो है हमारे पास मैन पावर है। और मैन पावर से क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट जो है उसकी शॉर्टेज होती जा रही है। और शॉर्टेज क्यों है? क्योंकि क्वालिफाइड टेक्निकल पर्सन नहीं मिल पा रहे हैं, या टेक्निकल स्किल्स होने के बावजूद भी इकोनॉमिक ग्रोथ उनकी नहीं हो रही, क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल ही नहीं रहा। अब अनएम्प्लॉयमेंट से क्या हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट से बच्चों, मैन पावर, रिसोर्सेज का वेस्टेज होता है और काफ़ी होपलेसनेस क्रिएट हो जाती है यूथ पीपल के, यंग पीपल के बीच में, क्योंकि उनको जब अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, उनको जॉब नहीं मिल पाती है, तो उनको बहुत निराशा होती है अपने जीवन से, कितनी मेहनत करने के बावजूद उन्हें कुछ नहीं मिला। और दे हैव नॉट इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली। उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते ताकि वो अपनी फैमिली की हेल्प कर सकें। तो एजुकेटेड पीपल की जो असमर्थता है, जिससे कि हु आर विलिंग टू वर्क, जो काम करना चाहते हैं लेकिन टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज अ ग्रेट सोशल वेस्ट। यानी कि जो काम करना चाहते हैं लेकिन फिर भी उन्हें काम नहीं मिल रहा है, खाली बैठे हुए हैं, तो ये इससे क्या होता है, हमारी सोसाइटी का बहुत वेस्ट होता है। और अनएम्प्लॉयमेंट से बच्चों ये इकोनॉमिक लोड भी बढ़ता है, ओवरलोड हो जाता है ना।
और वर्किंग पॉपुलेशन मैक्सिमम जो है वो डिपेंड हो जाती है, वर्किंग पॉपुलेशन जो काम कर रही है उसके ऊपर अनएम्प्लॉयड वर्कर्स जो हैं वो डिपेंड हो जाते हैं अपने लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिए, अपने लाइफ सर्वाइवल के लिए। तो इससे क्या होता है कि लोगों को में बहुत निराशा घेर होती है, इससे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं, परेशानियाँ होती है, डिप्रेशन आ जाता है, इकनॉमी भी डिप्रेस हो जाती है। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसीज़ बनाएं जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो सके। बहुत सारे देखो गाँव में भी क्या होता है कि जो लोग पहले क्या कहते हैं कि अभी जैसे मोदी जी ने क्या किया था, एक प्रधानमंत्री कौशल रोजगार योजना चलाई थी। उसमें क्या था कि जितने भी लोग हैं उनको क्या कहते हैं कोई ना कोई ट्रेनिंग दिया गई, जैसे किसी को जूता बनाने का काम दे दिया गया, कोई चमड़े का काम दे दिया गया, या किसी को छोटे छोटे टूल्स बनाने का काम दे दिया गया। इस तरीके से किसी को बैग सिलने में माहिर बना दिया गया, कुशल बना दिया गया। इससे क्या हो रहा है कि छोटे छोटे काम सीख के, जैसे कोई लड़कियां हैं उनको पार्लर का काम सिखा दिया गया। इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि लोगों को, मैक्सिमम लोगों को स्किल्ड बनाया जा रहा है। स्किल्ड बनेंगे लोग तो अपने आप ही अपना स्वरोजगार कर लेंगे, अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर लेंगे, कोई दुकान खोल लेगा, कोई कोई बिजनेस कर लेगा, उससे जो भी वो जो है एम्प्लॉय हो जाएगा और उसके पास अर्निंग के कोई ना कोई साधन, कोई ना कोई रिसोर्सेज पैदा हो जाएंगे, जिससे कि वो अनएम्प्लॉयड नहीं रह जाएगा। और हमारे इससे क्या होगा, उसकी अर्निंग बढ़ेगी तो हमारी नेशनल इनकम भी रेस करेगी। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर में फ़िलहाल इतना ही था। अब आगे मैं जो है देखती हूँ, नहीं तो फिर अभी इसके बाद हो सकता है कि मैं आपको हिस्ट्री में आगे बढ़ाऊँ, थोड़ा सा हिस्ट्री का सेक्शन बढ़ाऊँगी। तो तब तक के लिए प्लीज़ आप यू शेयर एंड लाइक माई वीडियोज़ एंड टिल देन गुड बाय। ओके।